جاتے جائے, ہماری بیماریاں مٹی جائے, ہماری تکلیفیں مٹی جائے, ہمارے حالات تبدیل ہو جائے. خداوند تو ایسا ہماری زندگی میں اپنے کلام کو نازل فرما. اور خدا تیرے بندہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں خداوند, جس طرح تیرے خداوند رسول تیرے نبی خداوند کلام بیان کرتے تو خداوند لکھا ہے کہ لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی تھی, ویسے ہی خداوند تو آج اپنے کلام کی قدرت سے اپنے بندہ کی معرفت سے ہم سے کلام کر, اور آج کا کلام ہمارے دلوں پر چوٹ لگنے والا کلام ہو, آج کا کلام ہماری تبدیلی کا کلام ہو, آج کا کلام ہماری شفا کا کلام ہو, آج کا کلام ہماری بحالی کا کلام ہو, تاکہ خدا ہماری زندگی سے سارا چراغ تیرے یسوع نام کو ملنے والا ہو. اس فضا ماحول کو تیرے کنٹرول میں دے دیتے, اپنی سوچوں خیالوں کو ہم تیرے کنٹرول میں دے دیتے ہیں, تاکہ پوری توجہ کے ساتھ تیرے کلام کو سننے والے ہوں اور اس پر 100 گنا خداوند پھل لانے والے ہوں. تیرے یسوع نام سے دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین. ہاللیلویا, ہاللیلویا. خداوند کا شکر ہے کہ ہم اس کے قدموں میں بیٹھے ہیں, اور یہ سب سے نہایت اعلیٰ عمدہ اور مبارک بات ہے. آمین, آمین. میرے عزیزوں, وہ لوگ جو خداوند کی حضوری میں نہیں آنا پسند کرتے وہ لوگ مبارک بھی نہیں ہیں. جو لوگ خداوند کی حضوری میں آنا پسند کرتے ہیں اور آتے ہیں, وہ لوگ خداوند کی حضوری میں جو آر موجود ہوتے ہیں وہ مبارک ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور بائبل مقدس کا خدا تعداد کا خدا تو نہیں, بلکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جہاں 2 یا پھر 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان کیا ہوں گا, موجود ہوں گا. کیا موجود ہوں, موجود ہوں, میں ان کے درمیان موجود ہوں گا. تو وہ فیوچر کی بات ہو جائے گی, لیکن خداوند ہمارا خدا پریزنٹ کا خدا ہے, وہ اسی وقت آن موجود ہوتا ہے. آمین, آمین. جب ہم اپنے زندہ خدا کو پکارتے ہیں تو وہ اسی وقت ہمارے درمیان آ جاتا ہے اور آ کر ہمیں برکت کرتا ہے اور بلیس کرتا ہے. آمین. سو میرے عزیزوں, آج کا میسج جو ہے, آج کا میسج کا ٹاپک جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے ریلیٹڈ اس لیے ہے کیونکہ آج کا میسج جو ہے ہمیں وہ مشکلوں سے آزاد کرنے جا رہا ہے. آج کا میسج جو ہے, آج کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو عذاب سے رہائی بخشنے جا رہا ہے. تو بڑے غور سے آپ نے اس کلام کو سننا ہے, اس میسج کو سننا ہے, اور یہ میسج, یہ کلام آپ کی لائف کو نہیں بلکہ آپ کے خاندان کو تبدیل کر دے گا. آپ کی سچویشن کو نہیں بلکہ آپ کے خاندان کی سچویشن کو تبدیل کر دے گا. وہ جو سالوں سال سے ایک مشکل اور مصیبت کا اور تسلسل چل رہا ہے, یہ میسج, یہ کلام آج اس کو بریک کر دے گا. لیکن اگر ہم غور سے سنیں گے, اگر ہم دھیان سے سنیں گے, اگرچہ ہم نے دھیان سے نہیں سنا, غور سے نہیں سنا, سرسری طور پر سنا, تو پھر جیسے 2022 میں چلتا آ رہا تھا پچھلے کئی سالوں سے, ویسے ہی 2023 میں بھی چلتا رہے گا. لیکن میرے عزیزوں, جیسے سال بدلا ہے, میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں کچھ چیزیں بدلنی چاہیے. آمین, آمین. جب ہم کچھ چیزیں اپنی زندگیوں میں بدلیں گے تو میرا ایمان اور میرا خیال ہے اس بات کے اوپر کہ بے شک وہ بدلنے والی چیزیں جو خدا کے کلام کے سبب سے بدلی جاتی ہیں وہ ہماری زندگیوں میں اثر انداز کرتی ہیں. آمین. تو آئیے بغیر دیکھ کے بائبل مقدس کی طرف چلتے ہیں. یشوع کی کتاب, یشوع کی کتاب اس کا 7واں باب, اور اس کی ہم دوسری آیت سے مطالعہ کریں گے. ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اسے سیکھتے جائیں گے. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے, اور یشوع نے یہو سے ای کو جو بیت ایل کی مشرق سمیت میں بیت, اور یشوع نے یرو سے ای کو جو بیت ایل کی مشرقی سمت میں بیت اون کے قریب واقع ہے. جی, واقعہ ہے, کچھ لوگ یہ کہہ کر بھیجے کہ جا کر ملک کا حال دریافت کرو, جا کر ملک کا کیا کرو, حال دریافت کرو. اب میرے عزیزوں, یہاں سے ہوا یہ کہ یشوع جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کو لے کر جو ہے ایک دوسری قوم پر, ایک دوسرے ملک پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے اور جنگ کرنا چاہتا ہے. ای کے لوگوں پہ چڑھائی کرنا چاہتا ہے, اور کچھ لوگ اس میں بھیجے ہیں کہ جا کر چیک کرو کہ وہ لوگ کس طرح کے ہیں اور کس طرح کے جنگجو ہیں, کس طرح کے لڑاکے ہیں. میرے عزیزوں, ہماری بھی ہماری لائف کے اندر روحانی جنگ ہر ٹائم چلتی رہتی ہے.
अगर आप चाहते हैं उस रूहानी जंग पे फतह पाना, फतह याब होना, तो फिर आज का मैसेज आपके लिए बहुत जरूरी है। आमीन। आज का मैसेज आपके लिए बहुत जरूरी है। सो हुआ यह कि यीशु ने कुछ लोगों को भेजा, और भेजने के बाद हुआ क्या, पढ़िएगा भाई। और इन लोगों ने जाकर आई का हाल दरियाफ्त किया, और इन्होंने जाकर आई का हाल देखा और चेक किया, और क्या चेक किया, पढ़िए। और वो यीशु के पास लौटे और उससे कहा सब लोग ना जाएं। उसने वापस लौटे और कहने लगे वहां के लोग इतने लड़ाके नहीं, इतने जंगजू नहीं है, नॉर्मल सी जिंदगी गुजारते हैं, नॉर्मल से लोग हैं, आज सबको जाने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ थोड़े से लोगों को ले जाएगा तो इससे भी फतह पा लेगा। आगे फकत 2-3 हजार मर्द चढ़ जाएं और आई को मार लें, सब लोगों को। सिर्फ 2-3 हजार। खुदावन कितनों में होता है? जहां 2 या 3 होते हैं खुदावंद उनमें। अब यहाँ पर क्या लिखा है? फक्त 2 या 3 हजार। यहाँ फिर 2 और 3 का फिगर आया है। आमीन। क्योंकि खुदावंद 2 और 3 के फिगर में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी आगे पढ़िएगा। और आई को मार ले, सब लोगों को वहां जाने की तकलीफ ना दे, क्योंकि वो थोड़े से हैं। चुनाचा लोगों में से 3,000 मर्द के करीब वहां चढ़ गए। अब 3,000 मर्द जो थे वो आई के ऊपर चढ़ गए, और उसके ऊपर चढ़ाई करके उन्होंने क्या किया? उनका मुकाबला किया, और मुकाबला करने जब गए, अब वो लोग तो जंगजू जंग करने वाले लोग थे ही नहीं, लेकिन हुआ क्या है? जी पढ़िएगा। और आई के लोगों के सामने से भाग आए, और आई के लोगों ने उनमें से कोई 36 आदमी मार लिए, और फाटक के सामने लेकर शबरीम तक उनको खदेड़ते आए और उतार। अब हुआ ये कि ये लोग समझ के गए हैं कि हम चढ़ाई करेंगे और हम क्या हो जाएंगे? जीत जाएंगे। लेकिन उसके हुआ उलट ही है, इसके बरक्स हुआ। और क्या हुआ कि जब उन्होंने चढ़ाई की है तो आई के लोग उनको खदेड़ना शुरू हो गए, आई के लोग उनको मारने लगे। 36 लोगों को उनमें से कत्ल कर दिया गया, और फिर उनको भगा रहे हैं और उनके पीछे तक उनका पीछा कर रहे हैं, और उनको मारते जा रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं। आगे पढ़िए। सो उन लोगों के दिल पिघल कर पानी की तरह हो गए। जी। तब यशवा और सब इस्राएली बुजुर्गों ने अपने अब जब यशवा को और इस्राएली बुजुर्गों को ये बात पता चली कि हमारे लोग, इस्राएली कौम जो है वो क्या हुई है? हार गई है। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों यहाँ पर सिर्फ आदमियों की बात नहीं थी, बल्कि खुदा की बात भी थी। खुदा ने इनसे कहा था कि तुम जो है वो चढ़ाई करो, और तुम्हारे चढ़ाई करने से क्या होगा? तुम जंग जीत जाओगे। और अब हुआ इसके उलट है, और इसके उलट हुआ ये कि इस्राएली कौम जो है वो जंग इस्राएली कौम क्या हुआ? जंग हार गई है। और इस्राएली कौम जो जंग हार गई है तो क्या हुआ? पढ़िएगा। तब यशवा और सब इस्राएली बुजुर्गों ने अब सब बुजुर्गों ने और यशवा ने अपने कपड़े क्या कर लिए? फाड़ लिए, अपने कपड़े फाड़ लिए। आगे। और खुदावंद के अहद के संदूक के आगे शाम तक जमीन पर कूदे पड़े रहे। शाम तक जमीन पर कैसे पड़े रहे? कैसे पड़े रहे? मेरे चीजों यहाँ पर दुआ करने का अंग है, यहाँ पर दुआ करने का तरीका है कि जब अपनी जिंदगियों के अंदर आप शिकस्ता हाल हो जाए, आप खुदावन के हजूर ऊंधे मुंह होकर गिर पड़े, ऊंधे मुंह होकर लेट जाए, यानी पेट के बल लेट जाए खुदावन की हजूरी में, और ऊंधे मुंह होकर दुआ करना शुरू करें। एक टाइम था, एक वक्त था जब हमने ये सीखा कि हमें घुटनों के बल और हाथ बुलंद करके दुआ करने की जरूरत है। ये तरीके का दुआ कर। अब ये तरीके एक और है, ऊंधे मुंह होकर खुदावन की हजूरी में दुआ करना। अब ये ऊंधे मुंह होकर खुदावन की हजूरी में पड़े रहे शाम तक। और फिर क्या हुआ? पढ़िएगा। और अपने सर पर खाक डाली। जी। और यीशुआ ने कहा, 11वीं आयत से पढ़ दीजिए, 10वीं आयत से। और खुदावन ने यीशुआ से कहा, उठ खड़ा हो। अब हुआ ये कि शाम तक वो ऊंधे मुंह होकर खुदावन की हजूरी में पड़ा रहा। तो शाम के टाइम पर, वही ठंडे वक्तों में जब खुदा आदम से मिलने आता था, हालेलुया, हालेलुया, वही शाम के वक्त में वो यशवा से बात करना शुरू हुआ और कहा कि तू यशवा इस तरह ऊंधे मुंह होकर क्यों पड़ा है? उठ खड़ा हो। आगे। और खुदावन ने यीशुआ से कहा, उठ खड़ा हो, तू क्यों इसी तरह ऊंधा पड़ा है? उठ खड़ा हो, तू क्यों इस तरह ऊंधा पड़ा है? इसराइलियों ने गुनाह किया। इसराइलियों ने क्या किया है? इसराइलियों ने क्या किया है? ये जो जंग ऐसे ही नहीं हारे, इसके पीछे वजह है
जो तुझे नहीं पता लेकिन मुझे पता है, मैं तुझे बताए दिए देता हूं। इसराइलियों ने क्या किया है? इसराइलियों ने गुनाह किया है। मैंने कहा था हाँ तुम चढ़ाई करो, तुम जीत जाओगे, लेकिन तुम हार गए। इसलिए हारे हो क्योंकि इसराइलियों ने गुनाह किया है। और कैसा, किस किस्म का गुनाह किया, जरा सुनिएगा, पढ़िएगा भाई। और उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया, उन्होंने क्या किया है? अहद को तोड़ा है, हुक्म को तोड़ा है, जो मैंने उनको अहद और हुक्म दिया था, उन्होंने उस हुक्म को तोड़ा है, जिसके बायस वो जंग क्या हुए हैं? हार गए हैं। और मुखालिफीन ने उनको खदेड़ा है और उनके कई लोगों को मार भी दिया है। कहता है कि खुदावंद कहता है कि इसराइलियों ने गुनाह किया है। यीशुआ तुझे ये बात नहीं मालूम, लेकिन मैं जिंदा खुदा हूँ, मैं इंसान की पोशीदगी की हालत को भी जानता हूँ। जब वो अकेले में होता है, अलग में होता है, तन्हाई में होता है, तब भी खुदावंद की नजर हमें देख रही है, तब भी खुदावंद हमें देख रहा है। बाज़ औक़ात इंसान जब तन्हाई में होता है, अलगगी में होता है, वो सोचता है कोई मुझे नहीं देखा। यहां पर इसराइलियों के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। इसराइलियों ने यह समझा कि खुदावंद हमें देख नहीं रहा और हम जो चाहे मन मर्जी आए करें। यहां पर खुदावंद ने कहा इसराइलियों ने यशवा गुनाह किया और उन्होंने उस अहद को, उस हुक्म को तोड़ा है जो मैंने उनको दिया था। और वो हुक्म क्या था? पढ़िएगा। उन्होंने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले भी लिया। उन्होंने मखसूस की हुई चीजों में से क्या किया है? मखसूस की हुई चीजों में से क्या किया है? मखसूस की हुई चीजें किसके लिए होती हैं? खुदा बोले ना भाई, किसके लिए होती हैं? मखसूस की हुई चीजें किसके लिए होती हैं? खुदा के लिए मखसूस की हुई चीजों में से उन्होंने मखसूस चीजों को ले भी लिया है और फिर उसके साथ क्या किया है जी? चोरी भी की। हाँ जी, पहले नंबर पर उन्होंने हुक्म तोड़ा, तोड़ने के बाद फिर उन्होंने क्या किया? मखसूस की हुई चीजों में से चीजें ली और उसको चोरी की है, उसको चुरा लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसराइली क्या बन गए हैं? इसराइली क्या बन गए हैं? इसराइली क्या बन गए हैं? जरा जोर ना कहो ना। इसराइली क्या बन गए हैं? इसराइली चोर बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा की मखसूस की हुई चीजों में से चुरा लिया है। अब इसराइली चोर हैं। आगे, और रियाकारी भी की और रियाकारी भी की है। चोरी करने के बाद हाँ जी, सानू तो कुछ पता नहीं। अच्छा है जी होया। ओहो हागे नो हो, बड़ा माड़ा होया। ये रियाकारी है। जो काम उन्होंने किया उसके बावजूद अपनी गलती का इकरार नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक्टिंग की है, ड्रामा करके दिखाया कि हमें तो कोई चीज पता ही नहीं है। तो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में खुदा कहता है कि इसराइलियों ने गुनाह किया और गुनाह करने के बाद उन्होंने महसूस की हुई चीजों में से अपने पास रख लिया और फिर उन्होंने चोरी की है, वो चोर भी बन गए और फिर उसके साथ क्या हुआ? पढ़िएगा भाई। और रियाकारी भी की, और रियाकारी भी की, एक्टिंग भी की है, और अपने इसबाब में उसे मिला भी लिया, और अपने माल में, अपने इसबाब में उसे मिला भी लिया है। मेरे अजीजों, यहां पर गौर तलब बात है, क्या इसराइली ही चोर थे? क्या हम भी चोर नहीं है? क्या इसराइली ही चोर थे? क्या ख्याल है? मेरे अजीजों, खुदा की मखसूस की हुई चीजें, उन्होंने मखसूस की हुई चीजों में से अपने पास क्या किया है? क्या किया है? खुदा के लिए मखसूस की हुई चीजों में से अपने पास रख लिया, चुरा लिया, चोरी कर ली है। मेरे अजीजों, हम भी खुदा के हिस्से में से खुदा को नहीं देते। खुदा का मखसूस किया हुआ हिस्सा कौन सा हिस्सा होता है? वो दसो, मैं 10 भी देता है कितना ऐसा होता है? खुदा का 10वां हिस्सा हम खुदा को। तो जब हम खुदा को नहीं देते तो इसराइली क्या थे? देसी किया। मोड़ नहीं बोल दे, पहले तो बड़ी जोर ना बोल दे हैं। मेरे चीजों, जरा गौर करें इस बात को जरा समझें कि हमें दूसरे की चोरी तो चोरी नजर आती है, लेकिन हम जो आदमियों की चीजें नहीं चुराते, बल्कि हम खुदावंद की चीज को चुरा लेते हैं। खुदावंद की मखसूस की हुई चीज को अपने पास रख लेते हैं और हम कहते हैं हमने तो कोई गुनाह नहीं किया।
پھر بیماری ہمارا پیچھا کیوں نہ کرے, پھر بدروئے ہمارا پیچھا کیوں نہ کرے, پھر مصیبتیں ہمارا پیچھا کیوں نہ کرے, پھر تکلیفیں ہمارا پیچھا کیوں نہ کرے, پھر مصیبتیں ہمارا پیچھا کیوں نہ کرے, وہ کریں گی. پھر آپ کی زندگی میں دعائیں اثر نہیں کرتی. آپ کہتے ہیں پادری صاحب ساڈے سے دعا کرو, پتہ نہیں کی مسئلہ ہے, دوسرے ہاستے تے دعا فٹافٹ کام کرتی ہے, ساڈے ہاستے تے کام ہی نہیں کرتی. پتہ نہیں کی مسئلہ ہے, وہ دے ہاستے ہاتھ انہوں نے رکھیا, وہ تھلے جا پیا. پتہ نہیں سانو مسئلہ ہی نہیں سمجھ آتا, ساڈے ہاستے سارا مسئلہ ہی نہیں حل ہوندا. ہم یہی سوچ سوچ کے اپنی زندگیاں گزارتے آئے ہیں 2022 تک. میرا خیال ہے اب 2023 جو ہے وہ چینجنگ کا سال ہونا چاہیے. آمین. وہ تبدیلی کا سال ہونا چاہیے. آمین آمین. میرے عزیزو, بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ روحانی جنگ بھی ہار سکتے ہیں, ہرائی جا سکتی ہے اگر ہم خدا کے مخصوص کی ہوئی چیزوں کو چرا لیتے ہیں اور اپنے اچھا جڑا مال ہوتا ہے خدا دا 10واں جڑا ہوتا ہے اسی خدا دے کولوں خدا نو دیندے نہیں, خدا دا مخصوص کیتا ہے, رکھ لینا اپنے کول تے پھر اپنے مال چ بولیں جی اپنے مال میں ملا لیتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں یہ بھی تے ساڈا ہے. اور پھر ریاکاری کرتے ہیں, ہاں جی پادری صاحب اسی تے سارا کچھ ہی کری جائے. بائبل مقدس میں لکھا ہے پہلے انہوں نے حکم توڑا, حکم توڑنے کے بعد پھر انہوں نے چوری کی, چوری کرنے کے بعد لکھا ہے کہ انہوں نے ریاکاری کی ہے. میرے عزیزو, ریاکاری بھی ہم کرتے ہیں, ہم ریاکاری بھی کرتے ہیں. بار بار ہم خدا کے میسج کو, خدا کے کلام کو سن کر اگنور کرتے ہیں, اور اگنور کرنے کے بعد ہم اس حکم کو توڑے رکھتے ہیں, اور پھر ہم ہاتھ جوڑ کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں, پادری صاحب دعا سے کرتے ہو ساڈے واسطے. یہ ریاکاری ہے. آپ کو اپنے گناہ کا پتہ ہونے کے باوجود آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں دعا کروانے کے لیے, یہ ریاکاری ہے, یہ ایکٹنگ ہے. کیونکہ جب تک آپ اپنی اس غلطی کو درست نہیں کریں گے اس وقت تک خدا آپ کی زندگی میں آسودگی اور برکت کو جاری نہیں کرے گا. میرے عزیزوں, بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے چوری کی, انہوں نے خدا کی مخصوص کی ہوئی چیز کو رکھ لیا اور پھر اپنے مال میں ملا لیا, اور اس نے کہا اسرائیلیوں نے گناہ کیا, اس سبب سے وہ جنگ ہار گئے. آج میرے عزیزوں ہمارے گھروں کے حالات بدلتے نہیں ہیں, ہماری زندگیوں کے حالات بدلتے نہیں ہیں. ہم پستے آ رہے ہیں کئی سالوں سے اپنے گھروں کے اندر, ہم پستے آ رہے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر. ہمارے کام کاروبار نہیں ہمارے پاس بیماریوں نے, پریشانیوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں ہم خدا کے لوگ ہیں. تو پھر خدا کے لوگوں کے لیے تو وعدے ہیں بائبل مقدس میں لکھا ہے میں تیری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا. تو کیوں نہیں ڈانٹتا؟ اس لیے تو نہیں ڈانٹتا کیونکہ ہم اس کے حکم کو توڑے ہوئے ہیں, ہم نے گناہ کیا ہے. بائبل مقدس کے وعدے ہیں, بائبل مقدس کے حکم ہے. وہ کہتا مجھے آزما کر دیکھ, میں تیرا کاروبار کھولنا کہ نہیں, میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کرتا ہوں کہ نہیں, مجھے آزما کر دیکھ. اور جب بھی ہم اسے آزماتے ہیں, جب بھی ہم اسے چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوتا, ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے خدا کے حکم کو توڑا ہے, اور خدا کی مخصوص کی ہوئی چیز کو یعنی اس 10ویں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اس 10ویں کو ہمیں اپنے پاس سے نکالنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس 10ویں کو خدا کے حضور لانے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنی زندگی کے اندر ترقی کر رہے ہیں اچھی بات ہے, لیکن یہ مت سمجھیں کہ یہ ترقی, یہ بڑھوتی ہمیشہ کے لیے ہے. جنہوں نے حکم توڑا ہے ان کے لیے سزا بھی ہے. اس سے پہلے کوئی جنگ وہ نہیں ہارے. اسرائیلی بڑھوتی کرتے بڑھتے سرفرازی پاتے آئے ہیں, اور ان کا دل بڑا مضبوط ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جس بھی قوم پر چڑھائی کریں گے ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے, ہم جیت جائیں گے. میرے عزیزوں, اگر سرفرازیاں ہیں 2022 میں سرفرازیاں پائی ہیں, مال و اسباب بہت اکٹھا کر رکھا ہے, بہت کچھ ہے آپ کے پاس, اور آپ خدا کے اس حکم کو توڑے ہوئے ہیں, تو یاد رکھیے کہ 2023 سال آپ کے لیے بربادی کا بھی سال ہو سکتا ہے. کیونکہ جنہوں نے خدا کے حکم کو توڑا ہے وہ خدا کے حکم کو توڑ کر, بھائی پلیز آپ اس طرف آئیے, وہ خدا کے حکم کو توڑ کر
कभी भी खुदा से बरकत हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उसने कहा कि इसराइलियों ने गुनाह किया है। आज मेरे अजीजों, कलीसियाएं और हम सारी जिंदगियां गुनाह करती हैं। जरा सोचिए इस बात को कि खुदा हमें कमाने की तौफीक ना दे, कुव्वत ना दे, हमें रोजी रोजगार कारोबार ना दे, तो कैसा फील होता है अपनी लाइफ के अंदर? आपके मामला चलेंगे, आपके घर चलेंगे, आपकी जिंदगियों के काम चलेंगे? नहीं चल सकते, रुक जाएंगे। जब उसने अपने हाथ को आज तक नहीं रोका, तो फिर आप अपने हाथ को क्यों रोके हुए हैं? इसलिए कि कहीं बरकत ना पा जाए। मेरे अजीजों, इब्लीस आपको हर चीज में वर्गलाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इस चीज में वर्गलाता है। वो चाहता है कि आप हमेशा पिसते रहें, वो चाहता है कि आप हमेशा सफर करते रहें, वो चाहता है कि आप हमेशा स्ट्रगल करते रहें, आप कभी कामयाब लोग ना बने। अब इब्लीस हमेशा आपको फंसाए रखता है इस गेम के अंदर, और आपको कहता रहता है कोई मसला नहीं, कोई गल नहीं, कोई टेंशन नहीं, खैर है महीने जरा खर्चे कुर्चे बहुत देने ना, तो अगले महीने कर लांगे। अगला महीना आंदा तो फिर उस महीने उस तो ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, लेकिन खुदावंद का हिस्सा नहीं निकलता, और खुदावंद की मखसूस की हुई चीज को हम अपने पास ही रखते हैं। मेरे चीजों गौर तलब बात यह है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम हम अपनी जिंदगी में तो शायद कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे अजीजों याद रखें इस बात को कि अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम कर रहे हैं, खैर करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुदावंद का 10वां हिस्सा जिसका हुक्म दिया गया है उसको अदा नहीं कर रहे, तो आप अक्सर में खुदा के हुक्म को तोड़ रहे हैं, उस हुक्म को तोड़ रहे हैं। मेरे अजीजों याद रखें कि हम खुदा के हुक्मों को तोड़ मरोड़ के पेश कर सकते हैं कि नहीं? उधर तोड़ मरोड़ के अमल कर सकते हैं कि नहीं? कभी भी अमल नहीं कर सकते। अगर आप अपनी जॉब के अंदर कामयाब नहीं है, अपने कारोबार में कामयाब नहीं है, अपने खानदान में कामयाब नहीं है, आपकी जिंदगियों में, आपके घर में बीमारियां रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, और वो बीमारियां जाती नहीं है, मुश्किलें जाती नहीं है, मुसीबतें जाती नहीं है, इसलिए नहीं जाती क्योंकि खुदावंद की अनॉइंटिंग आप पर और आपके घराने खानदान पर जारी ही नहीं हो रही। इस वजह से क्योंकि आप खुदावंद का हुक्म तोड़ के बैठे हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उसने हुक्म दिया पूरी दया की जखीरा खाना में लाओ। कुछ लोग क्या करते हैं 2% इससे खुदा की हजूरी में लाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं 5% लाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं 10%। हर बंदे ने अपने अपने हिसाब से खुदावंद के हुक्म को मरोड़ तोड़ के अपने तरीके और अपने हिसाब से बनाया हुआ है कि नहीं? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मंथली बेस पे ठहराया हुआ है, असा 1000 रुपया देना है रब देगा, असा 2000 देना है, भले तनख्वाह आपकी 50,000 रुपया हो, दया की आपकी 5,000 बनेगी, 10वां हिसाब का 5,000, लेकिन आपने ठहराया है मैं 1000 रुपया देना है रब दे हजूर। आपके 1000 की भी खुदावंद को कोई जरूरत नहीं, अगर आप उसके हुक्म को पूरा नहीं अदा करते तो। आप उसके हुक्म को अदा करें, आप उसके हुक्म को अगर पूरा करेंगे तो याद रखें कि फिर हम चोर नहीं होंगे, बल्कि खुदा के बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम रियाकारी कर रहे हैं। हाँ देखो, हमसे कोई बड़ा मुकद्दस शख्स नहीं है, हम कितनी दुआएं करते हैं, हमारे हाथ रखने से ऐसा 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 हो जाता है। ये रियाकारी है, ये एक्टिंग है। हम खुदा की हजूरी में बड़ी वफादारी से चल रहे हैं, बड़ी ताबेदारी से चल रही, ये एक्टिंग है, क्योंकि ताबेदारी और वफादारी ये नहीं होती जिसे हम कह रहे होते हैं। वफादारी और ताबेदारी वो है जो खुदा का कलाम कह रहा है। आमीन, जो खुदा का कलाम कह रहा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसने चोरी की है, और चोरी इसराइलियों ने चोरी की है। मैं चाहता हूं कि 7वें बाब की पहली आयत को पढ़ दीजिए, जरा गौर से सुनिएगा। पहले हमने सुना कि कौम ने क्या किया है, चोरी की है, और अब जब यशवा 7वां बाब उसकी पहली है, पहले हमने सुना कि कौम ने गुनाह किया, लेकिन अब कौम ने नहीं, कौम में से एक शख्स ने गुनाह किया, जिस एक शख्स के बायस सारी कौम हार गई है। जी पढ़िएगा। लेकिन बनी इसराइल ने मखसूस की हुई चीज में खयानत की। बनी इसराइल कौम ने मखसूस की हुई चीज में क्या की है, खयानत की है। जो मुझे देनी थी वो मुझे नहीं दी, बल्कि अपने पास रख ली है। खयानत की है, मुझे नहीं दी है।
मखसूस की हुई चीज में खयानत की है जी। क्योंकि अकन बिन कर्मी बिन जब्ती बिन सारा ने, अब ये शख्स है जिसके बारे में बताया जा रहा है, खुदा कह रहा है कि अकन जो है, अकन नाम का शख्स जो है, जो तुम में मौजूद है, उसने ये काम किया है जी, जो यहूदा के कबीला का था, जो यहूदा के कबीला का था, उन मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले लिया, और मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले लिया है। सो खुदावन का कहर बन इसराइल पर भड़का जी। और यीशुआ ने यरू से आई को जो बैतएल की, अब 22वीं आयत से पढ़ेंगे। अब ये शख्स जो जाहिर हो गया है, यीशुआ ने इसको बुलाया और बुला कर कहा, हाँ भाई खुदा ने तेरे बारे में ऐसे ऐसे बताया है, क्या तूने ये काम किया है? तो उसने कहा, हाँ जी ये काम मुझसे हुआ है, ये काम मुझसे हो गया है। तो जब काम हो गया है तो क्या हुआ मेरे अजीजों, आज तो हम मानने को भी तैयार नहीं होते। बड़ी गल है, वो मान गया है, बड़ी बात है कि वो मान गया है। आज खुदा बोल भी रहा हो, खुदा कलाम भी कर रहा हो, खुदा बता भी रहा हो, असं कहने नहीं सारी जिंदगी नहीं है, इंज तो होया ही नहीं, कल नहीं है। हम मानने को भी तैयार नहीं होते हैं। तो ये रियाकारी नहीं है, एक्टिंग नहीं है, तो और क्या है? 22वीं आयत से पढ़िएगा। बस यीशुआ ने कासिब भेजे और वो उन डेरे को तोड़े गए, और क्या देखा, 20वीं आयत से पढ़ लीजिए। और अकन ने यीशुआ को जवाब दिया, और अकन ने यीशुआ को जवाब दिया। यीशुआ ने उससे पूछा और अकन ने उसको जवाब दिया। यीशुआ को क्या जवाब दिया? फिल हकीकत मैंने खुदावन इसराइल के खुदा का गुनाह किया है। बेशक ऐसा ही है, ये हकीकत है कि मैंने खुदावन इसराइल के खुदा का गुनाह किया है। और वो जो गुनाह किया है वो माल आगे वो बताता है क्या क्या उसने अपने पास रखा है जी। पढ़िएगा। और ये मुझसे सरजद हुआ है, और ये चीजें मुझसे सरजद हुई है कि जब मैंने लूट के माल में बाबल की एक नफीस चादर और दो बाबल की एक नफीस चादर, 200 मिस्काल चांदी और 50 मिस्काल सोने की एक ईंट देखी, तो मैंने ललचा कर उनको ले लिया। जदों खुदा दा देना होवे ना तो साढ़े दिल च भी लालच आ जाए। ओहो 5000 आती कि नहीं आती? आजकल तो 2000 दी आ जाती है, खुदा नू दे देने ने। एक बुजुर्ग खादम थे, उनके पास बैठे हुए बात हो रही थी, तो कहते हैं, बात सुना रहे थे, कहते को खादम था, तो वो खादम खुदा के जोर दुआ कर रहा था, तो बुआ जड़ी सी और रोटियां पका रही सी, ते ਉਹ ਖਾਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਬੂਆ ਦੇ ਕੰਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਲੱਖ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਕਰਾ। ਤੇ ਬੂਆ ਜਲਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਂ ਹੈ, सारे 1 ਲੱਖ दे देना खुदा दे घर। कहता वो 2 ਲੱਖ आ ते लैन दे फिर ही लख देना है। मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगी में अपने दिल में लालच करते हैं खुदा की मखसूस चीजों का, और हम उस लालच को बढ़ोतरी देते हैं और पूरा नहीं करते हैं, जिसके बाइस फिर क्या होता है, फिर सजा मिलती है, फिर सजा आती है। तो जो सजा आती है ना, तो असि फिर भी कहने हाँ जी खुदा अपने लोगों की आजमाइश करता है, असि मुकद्दस बन जाने फिर फटाफट। हाँ जी साडी ते आजमाइश है, बाकियां ते तेजाब ही आया सारियां ते। साडी आजमाइश खाली सा, बाकी ते सारे बदकार ने। साडी आजमाइश हो रही है तो बाकियां ते अजाब है। फटाफट कहने चलो जी कोई नहीं, आजमाइश खत्म हो जाएगी। ये नहीं सोचते कि हमने किया क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं हमने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ रख लिया है तो उन्होंने आजमाइश समझ रहे होया साडे कोल गुनाह है तो साडू रब सजा देंदा होवे जी। आगे पढ़िए। मैंने ललचा कर उनको ले लिया, और वो मेरे डेरे में जमीन में छुपाई हुई है, और चांदी उनके नीचे है। 22वीं ऐसे पढ़िए। बस यीशुआ ने कासिब भेजे और वो उस डेरे को तोड़े गए, और क्या देखता है कि वो उस डेरे में छुपाई हुई है और चांदी उनके नीचे है। हाँ जी। वो उनको, अब वो सब चीजें, वो सारा माल क्या हो गया, बरामद हो गया है। क्या जेड़े माल इन्हें सारा कुछ लिया थी। मेरे अजीजों, खुदा हमारी जिंदगियों से ये सारा माल बरामद कराता है। कराता क्या नहीं कराता? बीमारी साडे पल्ले पा देता है, कारोबार सानू नहीं देता, जेड़ा कोल होता है वो भी जाता रहता है। यहाँ पर लिखा है कि उसने फिर उसका सारा माल ले लिया है। पढ़िए भाई, पढ़िए। और
वो उनको डेरे में से निकाल कर यीशु और सब बनी इसराइल के पास लाए और उनको खुदावन के हुजूर रख दिया। 24वीं आयत से, तब यीशु और सब इसराइलियों ने जारा के बेटे अकन को और उस चांदी को और चादर और सोने की ईंट को और उसके बेटों और बेटियों को और उसके बैलों और गधों और बकरियों। बैल और गधे उसने नहीं लिए थे खुदा के, ये बैल और गधे उसके अपने थे। उसके बैल, उसके गधे, उसके बेटे, उसकी बेटियां, हाँ जी, ये सब उसका माल था, अकन का माल था जी। भेड़ बकरियों और भेड़ बकरियों को जी, डेरों को और जो कुछ उसका और डेरिया नू ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਖੈਮੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਨ, उनको जी, जो कुछ उसका था सबको ले लिया और जो कुछ उसका था सबको किसने लिया है? रब ने लिया है। जो कुछ उसका था सब कुछ ले लिया। मेरे अजीजों, जब हम खुदा की मखसूस की हुई चीजों को लेते हैं, हम खुदा के 10वें हिस्से को लेते हैं, तो फिर खुदा हमारी सब चीजों को ले लेता है हमसे। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ है, बस रियाकारी हो रही है, एक्टिंग हो रही है, एक्टिंग कर रहे हैं हम, पता हमें सब कुछ है, हमने क्या कुछ किया है जिसके बायस ये हो रहा है। जी आगे पढ़िए। और वादी अकूर में उनको ले गए और यीशु ने कहा कि यहाँ पर सजा खत्म नहीं हो गई, आगे भी सजा है। आगे क्या हुआ, पढ़िएगा। और यीशु ने कहा कि तूने हमको क्यों दुख दिया? तूने हमको क्यों दुख दिया? खुदावन आज के दिन तुझे दुख देगा। खुदावन आज के दिन तुझे क्या करेगा? क्या देगा? क्या देगा? मेरे जिसो जब हम भी दुख पाते हैं तो फिर साड़ी हाय हाय निकलती है, तो फिर असी कहने पादरी साहब दुआ करते हो, दुआ करते हो। साडा मसला बहुत बड़ा है। जरा गौर करें, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आए हैं और बहुत दूर दूर से आने के बावजूद हमारी कलीसिया का हिस्सा नहीं है, हमारे साथ मेंबरशिप नहीं है, लेकिन हमने उनके लिए दुआएं की और उनके लिए 3-3, 4-4 महीने लगातार मेहनत की और उसके बाद दुआएं रोजे किए। उसके बाद जब वो ठीक हो गए, ठीक होने के बाद मैं कौन थे, तो क्या हुआ, फायदा क्या पहुंचा? क्या खुदा अपने लोगों के दरमियान इसलिए काम करता है कि लोग आए और अपना मतलब पूरा करें और चले जाएं? मेरे जिसो खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने हमें वो ब्लेसिंग और वो बरकत दी है, जिन मामलात को, जिन केसेस को कोई हाथ नहीं लगाता या हाथ नहीं डालता, खुदावन के फजल से वो लोग यहाँ पर लेके आते हैं। लेकिन पता कब लेके आते हैं? जब अपने चर्च खत्म हो जाते हैं तो फिर साडा चर्च खत्म हो जाता है, तो असी तो सारे बहुत फारग होंगे हैं, तो फिर वो आ जाते हैं, फिर असी उन्होंने दुआवा करने 2-2, 3-3 बजे तक। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी ड्यूटी है। और जब खुदा को देने की बात आती है तो फिर क्या होता है? फिर क्या होता है जी? खुदा को देने की बात होती है तो फिर क्या होता है? अपना चर्च, फिर ते अपने ही याद आते ने ना, अपने भैन भरा है नहीं। साडा प्यो दादे का चर्च है जी, वो जो जी बदरू कढ़ानी सी, जो मसला तुहाडा सी, प्यो दादे चर्च क्यों नहीं गए, है ना? तो फिर आप यहां पर क्यों आए थे? मेरे अजीजों, जब हम अगर कुछ करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, याद रखें तो फिर हमें उसको गिवन टेक दोनों पासे होता है। ये मत सोचे कि आप कुछ ले रहे और लेकर चले जाएंगे। बेशक खुदावा ने कहा कि मुफ्त दिया है, मुफ्त बांटो, लेकिन क्या हम इतने मतलब परस्त हैं जिनके वसीला से हमारी जिंदगी में कुछ हुआ होता है, हम उनको भी छोड़ देना गवारा करते हैं? क्या ख्याल है? बहुत सारे लोग, अभी पिछले दिनों मुझे एक फैमिली मिली, 6 साल पहले वो यहाँ पर आए, 6 साल पहले यहाँ पर भाई जी दुआ की थी होते थे। अच्छा, मुझे भूल चुका था, मैंने कहा पता नहीं कोई मसला नया है इनका कोई, तो मैंने दुआ की, खुदा के रूह ने मुझे बताया कि इनके साथ मसला पहले भी था, तो ये ठीक हो गए थे। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका मसला पहले भी था? कहने लगे जी 6 साल पहले तो कोल आई सी दुआ करान, उदों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲੂਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ, और वो बदरुएं बताने के लिए निकल दिया नहीं सन, तो वो बदरुएं इसमें से निकली हैं। तो मैं कह जी 6 साल के बाद फिर आ गए, फिर बदरुआ तंग कर, मैंने हाथ रखा दरम करके थले देख पी। मैं क्या, जब हमसे मतलब होता है तभी क्या हम याद आते हैं? मेरे से ये बातें कड़वी जरूर हो सकती हैं, लेकिन ये हकीकत है। आप देख रहे हैं ये जगह कितनी सी है, कितनी सी जगह है?
آپ کے گھر بھی شاید اس سے بڑے ہیں کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ نظر آتے ہیں آپ کو؟ ہے کہ نہیں؟ میرے عزیزو 2023 کے اندر ہم نے یہ بات بھی رکھی ہے، اب دعا اس کے لیے اور محنت اس کے لیے، راتیں جاگنا اس کے لیے ہوگا جو ہمارا ممبر ہوگا، پاوے دوروں آوے پاوے نزدیکوں آوے، پہلے لوے ساڈی ممبرشپ تے پھر بعد چ کم سارے، یہ ہر ایک شخص کے لیے واجب ہو جائے گا۔ اور پھر اگر کوئی شخص وہاں بھی تو بڑی چلا کے نا وہ اپنا مطلب پورا کرانا چل بھائی کارڈ بناؤ دعا کراؤ تو نکلو، ہے جو کوئی ایسے کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ پڑھ سنیے گا ذرا، جو کوئی ایسے کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا، مسئلہ حل کرا کے ٹل گیا، ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو بتاؤں ایک بات، ان لوگوں کی زندگی میں پھر مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جن کے لیے میں دعا کر دیتا ہوں۔ بدروؤں کو بھی پتا ہوتا ہے انہوں نے مگروں ہٹ گئے ہیں، میدان کھلا ہے، آ جاؤ ٹیم لے کے آ جاؤ، پھر آ جاتے ہیں۔ تو جب وہ پھر آئیں گے نا تو جنوں آن گے تو 2 شپ ان کے اوپر لگتی ہیں، پہلے وہ اپنا ہدیہ کارڈ کلیئر کریں، دوسرا وہ 3 مہینے مکمل حاضری اتنے دین، پھر ہونا کا کام ہوئے گا۔ دعا کروانی ہے کروا لیں، نہیں کروانی آپ کی مرضی، ہمیں دعا کرنے کا کوئی شوق سانو کا دی بلے بلے بڑھانی، بلے تو یہ سنا دی ہے کہ نہیں؟ بلے بلے تو یہ سنا دی، ساڑھی تو کوئی بلے بلے نہیں، ہماری کوئی بات نہیں۔ سو میرے عزیزو بائبل مقدس کے مطابق ہے یہ جو کچھ ہم اپنی زندگیوں میں کر رہے ہیں، ہمیں مطلب کے لیے نہیں، اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے نہیں، خدا کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہنا۔ جب آپ خدا کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں تو آج یہ کلام کہاں سے سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لوگوں کے وسیلہ سے، آمین۔ جب خدا کے لوگوں کے وسیلہ سے آپ کلام سنتے ہیں تو اس کے وسیلہ سے آپ ہم برکت پاتے ہیں، آمین۔ اور آج ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ روحانی طور پر بھی خداوند کی حضوری میں چور ہیں، جسمانی طور پر بھی چور ہیں۔ ہمیں اس اپنی چوری کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، اکن کے ساتھ کیا ہوا، پڑھیے گا بھائی۔ تب سب اسرائیلیوں نے اسے سنسار کیا، تب سب اسرائیلیوں نے اسے کیا کیا؟ سنسار کہتے ہیں پتھر مارے، پتھر مار مار کے اس کو مار دیا ہے۔ اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ اکن کو کیا کیا؟ آج نکا جب پتھر کو تو مارے خوشی ہوتی ہے کہ غصہ چڑھ دے، انہوں بڑے بڑے پتھر مارے گئے اور پتھر مار مار کے اس کو مار دیا گیا ہے۔ بائبل کہتی ہے گناہ کیا کیا کہ اس نے خدا کی مخصوص کی ہوئی چیز اپنی جیب میں رکھی، اپنے گھر میں رکھی۔ میرے عزیزو جب ہم بھی خدا کا حصہ، 10واں حصہ جو خدا کا مخصوص کیا ہوا اس کا عہد اور اس کا حکم ہے اپنی جیب میں اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو یاد رکھے بیماری آپ کا پیچھا کرے گی۔ جس نے 2022 میں بھی آپ کو نہیں چھوڑا وہ 2023 میں بھی آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ جس نے 2022 میں مصیبت نے پریشانی نہیں چھوڑا وہ 2023 میں بھی آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ لیکن اگر آپ 2023 میں ان حکموں پر عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وعدے خداوند کے آپ کی زندگی میں پورا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرے عزیزوں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان وعدوں کو اور خدا کی مخصوص کی ہوئے 10ویں حصے کو خدا کی حضوری میں خدا کے گھر میں لانا شروع کریں، خدا کو دینا شروع کریں، تاکہ خدا ہمیں جس پیمانے سے ہم ناپیں گے خدا بھی ہمارے لیے اسی پیمانے سے ناپے گا۔ آمین۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، چند لمحات کے لیے خداوند کے کلام پر غور کریں۔